السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین و حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم سبوں کو یہ موقع غنیمت دوبارہ اور پھر سے ایک مرتبہ نصیب ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ پاکیزہ مقدس کتاب قرآن مجید کے تعلق سے ترجمہ و تفاسیر بغور سماعت کر سکیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مقدس کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، جو ہم سبوں کے آخری پیغمبر، نبی اور رسول ہے، اور ہم سب ان کے امتی ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 116 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور تو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ گزشتہ درس کے اندر آیت نمبر 115 تک کی بات مکمل ہو گئی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 116 کے اندر اپنی تعلق سے بیان کیا۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر دو راستے بنائے۔ قرآن میں کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھائے، ایک راستہ جاتا ہے صراط مستقیم کا اور ایک راستہ جاتا ہے شیطان۔ اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا کہ ہم طے کریں کہ کس راستے پر چلنا ہے، کس بنیاد پر طے کریں، اللہ کی کتاب قرآن کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بنیاد پر ہم طے کریں کس راستے کو اپنانا ہے۔ جہاں تک عقل اور شعور کی بات ہے تو عقائد سے متعلق یہ چیزیں ہیں، ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ تو تقدیر کے چیپٹر میں اور تقدیر کے بحث میں بہت سے لوگ اس طرح کے بھی الفاظ بولتے ہیں یا گڑھتے ہیں کہ جب ہمارا تقدیر لکھا جا چکا ہے تو ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، گناہ کریں یا نہ کریں، یہ تو وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں۔ مثلا آپ ایک چوراہے پر کھڑے ہیں اور ایک چوراہے پر آپ کو ایک جگہ جانا ہے، اس چوراہے سے، اور وہاں 5 راستے نکلتے ہیں یا 4 راستے یا 2 راستے نکلتے ہیں۔ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اس راستے پر جائیں گے تو کہاں نکلیں گے۔ اللہ نے اتنا شعور دیا، اس کو تقدیر سے نہیں جوڑ سکتے کہ ہم جان بوجھ کر بھٹک گئے۔ اللہ نے تقدیر کو لکھا ضرور ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ شعور بھی ہم نے دیا ہے، اور انسان اگر تدبیر کرے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اب 4 راستے ہیں، ہم کو آسنسول جانا ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ہم جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے اور کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اگر غلط راستے پہ چلے تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اسی لیے ہم غلط راستے پہ چل گئے، تو یہ ایکسکیوز صحیح نہیں، یہ ہیلے بہانے درست نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے 2 راستے بنائے، ایک راستہ ہدایت کا، ایک راستہ گمراہی کا ہے۔ ہمیں اپنے عقل اور شعور کی بنیاد پر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں ہدایت چاہیے یا ہمیں ضلالت چاہیے، ہے نا۔ اب بہت سارے گناہوں میں، گناہ تو کئی طرح کے ہیں، چوری گناہ ہے، شراب نوشی گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے،
जिना गुनाह है। इन सब गुनाहों में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक गुनाह को कतन, वैसे सब गुनाह को पसंद नहीं करता, अल्लाह नहीं कहता कि मुसलमान गुनाह करे, लेकिन अल्लाह ताला एक गुनाह को कतअन पसंद नहीं करता, वह शिर्क। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। और आयत नंबर 116 के अंदर अल्लाह ताला ने इसी बात का तस्करा किया है, अपने बारे में अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए तो उसको हरगिज माफ नहीं करता। अल्लाह के साथ किसी को हम किसी तरीके से शरीक ठहरा दें, इसीलिए शिर्क का जो चैप्टर है ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, और हम लोग आमतौर पर इस चैप्टर को ना पढ़ने की वजह से मोटी मोटी चीज़ों को शिर्क समझते हैं, लेकिन जो बारीकी चीज़ें उसको हम नजरात कर देते हैं। इस पर बहस होनी चाहिए, आप मुताला करें, स्टडी करें, दुरुस्त करवाएं, तकारीर सुने सुनवाएं, ताकि हम शिर्क की चप्पे चप्पे को समझ जाए, क्योंकि इसी की बुनियाद पर जन्नत जानना है। क्योंकि आगे अल्लाह ने क्या कहा, पहले अल्लाह ने कहा कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए तो हरगिज माफ नहीं करेगा, ला यगफिरु बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा, है ना। व यगफिरु मा दुना ज़ालिका लिमन यशा, और उसके अलावा अगर कोई गुनाह हो तो उसको माफ कर देगा, लिमन यशा, जिसके लिए चाहे। ये बहुत अहम टुकड़ा है। देखिए पहले टुकड़े के बाद दूसरा टुकड़ा है वो यगफिरु मा दुना ज़ालिका। इसके बारे में लोग अक्सर नौजवान जो है गलत फहमी का शिकार है। नौजवान क्या समझते हैं आज के कि चलो हमने शिर्क छोड़ दिया, अल्लाह कह रहा है शिर्क को माफ नहीं करेंगे, हमने शिर्क छोड़ दिया। देखिए अल्लाह कहता है यगफिरु मा दुना ज़ालिका, इसके अलावा तो गुनाह हो तो माफ, मतलब करें, तो मतलब ये ना हुआ अल्लाह उसके अलावा गुनाह को माफ कर देगा। किसे होता हम करें, शिर्क ना करे बाकी सब करे, मतलब तो ये ना निकल रहा है। लेकिन अल्लाह ने एक लफ्ज कहा आगे, लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहेगा। एक बंदा शिर्क नहीं करता, ठीक है, लेकिन शिर्क के अलावा बहुत सी गुनाहों में मुलविस है। वो ये समझ रहा है कि हम शिर्क नहीं करते तो जन्नत में चले जाएंगे, नहीं। अल्लाह ने कहा जिसे वो चाहेगा शिर्क के अलावा गुनाह को माफ कर देगा। अब हमें कैसे पता है कि अल्लाह हमारे बारे में चाह रहा है, तो कंफ्यूजन वाली बात है ना, डाउटफुल बात है। अल्लाह ने कहा जिसे चाहेगा उसे माफ कर देगा दीगर गुनाहों को, शिर्क को तो माफ नहीं करेगी। तो क्लियर है कि अगर बगैर तौबा के हम मर गए शिर्क करते हुए तो अल्लाह बख्शेगा, जानना हमारा मुकद्दर बन जाएगा, अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज रखे, आमीन। लेकिन ये मैसेज बहुत गलत है और बिलखुसूस नौजवानों के अंदर चीजें पाई जाती है कि भाई हम शिर्क नहीं करते जन्नत में जाएंगे, हम तो अल्लाह के साथ किसी शरीक नहीं छोड़ते, तो गुनाह है, अल्लाह वजू करते अल्लाह माफ कर देगा, झड़ जाएगी, इस तरीके की बातें करते हैं। अगर ऐसी बात है थोड़ी देर के लिए सपोज फर्ज कर लिया जाए, मान लिया चलो ठीक है, अल्लाह कह रहा है कि शिर्क को माफ नहीं करेगा, बाकी छोटे मोटे झूठ बोल दिए, गिबत कर दी, चुगली कर दी है, किसी पे नाहक जुल्म कर दिए तो अल्लाह माफ कर देगा। तो हमसे ज्यादा माफी के हकदार सहाबा कराम है ना। फिर भी सहाबा जिन सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दुनिया में दी गई, वो सहाबा अपने अमल को और ज्यादा करते थे। उमर फारूक की मिसाल ले लीजिए, हुज़ैफा बिन यमान से पूछ रहे कि क्या उमर का नाम है मुनाफिकों में। अगर अल्लाह शिर्क के अलावा गुनाहों को माफ कर दे, लिमन यशा को हटा देते हम लोग, हज़फ कर देते, मिटा देते, अल्लाह ना करे ऐसा कोई हो, तो क्या सहाबा को नहीं मालूम था? सहाबा ने इस आयत को नहीं पढ़ा कि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, हरगिज हरगिज माफ नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा गुनाह को माफ करेगा। अगर यही ज़हनियत और यही सोच लेकर हम बढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमसे बड़ा नादान कोई नहीं। ये गलत फहमी हम पाले हो। पहली बात ये कि हमें हर गुनाह से बचना है, चाहे वो गुनाह छोटी हो चाहे गुनाह बड़ी हो, इसलिए कि हमें नहीं पता कि कौन सी गुनाह करते हमारी मौत हो जाए, है कि नहीं। अलबत्ता शिर्क के बारे में अल्लाह ने बयान किया कि अल्लाह कभी पसंद नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। जो क्वालिटी और जो सिफात अल्लाह ताला की किसी और को दिया जाए, इसी तरीके से जो चीज़ें अल्लाह, तमाम चीज़ें अल्लाह की कुदरत में, हम कुदरत में किसी को शरीक ठहरा दें, ये अल्लाह तबारक व तआला कभी भी पसंद नहीं करेगा और ना ही उसको बख्शेगा। लेकिन वो यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, लिमन यशा से मुराद वो लोग भी हो सकते हैं जो बहुत नेकियां करते हैं लेकिन कभी कभी उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। वो नहीं चाहते गलती हो लेकिन हो जाती है, यानी भूल चूक जिसको कहते हैं, जानबूझकर नहीं। अब एक आदमी चोरी कर ले, ये सोच के शिर्क तो नहीं करते, चलो अल्लाह कह रहा माफ कर देंगे तो माफी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। एक आदमी किसी की नाहक जमीन पे कब्जा कर ले, ये सोच के चलो शिर्क नहीं करते हम, अब ये चीजें अल्लाह माफ कर देगा, हो जाएगा। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर कोई जानबूझकर एक बालिश किसी की जमीन ले ले
तो अल्लाह उसको 7 जमीनों का तोप पहनाएगा। सोचो ये कितना बड़ा गुनाह है। ये मिसालें हैं। वो यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहेगा उसके अलावा गुनाह को माफ कर देगा। अलावा में कोई छोटी छोटी चीजें हो तो अल्लाह उसकी नेकी की वजह से माफ कर देगा, या अल्लाह ये पसंद करेगा कि चलो जानबूझकर नहीं कर रहा, उससे हो जा रहा है, जबरन जिसको कहते हैं। वमन युशरिक बिल्लाह, और अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, वही जो शख्स युशरिक बिल्लाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा, फकत ज़ल्ला ज़लालन बईदा, तो बहुत दूर की गुमराही में चला गया, इतना दूर चला गया कि लौटने की आस ही नहीं। समझा? बईद मतलब उर्दू में इस्तेमाल दूर, करीब बईद, फकत ज़ल्ला ज़लालन बईदा, और उर्दू में भी दलालत इस्तेमाल होती है गुमराही के माना में, वही फकत ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो याद रहे कि बहुत दूर की गुमराही में चला जाए। अब आज के डेट में अगर इस आयत करीमा का माना पर गौर किया जाए तो हम देखें कि न जाने अक्सर मुसलमानों की अक्सरियत जो है, तादाद जो है, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी न किसी नाहिया तरीके से शिरक कर रही है, शरीक ठहरा रही है। जैसे कुछ चीजें, अकीदा एक क्या है भाई, अकीदा किसी भी मुसलमान के सर का ताज होता है। पहचान हमारी कैसी होती है अल्लाह के दरबार में, हमारे सही अकीदे के बुनियाद पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो दावत तबलीग का था, हम उस तरीके को बारीकी से गौर करें तो आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकायद पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इसीलिए हमसे कोई भाई कहता है कि हम कुछ किताबें दीजिए, खासकर वो नए नया मुसलमान है लेकिन दिन से करीब हो गया और स्टडी करना चाहता है, तो हम उसको अकीदे की किताब देते हैं। पहले अपना अकीदा दूर करें। कहने का मतलब यह है कि पहले नींव जो है ना, बुनियाद, उसको हम मजबूत कर देंगे। जब बुनियाद मजबूत कर देंगे तो एक तल्ला दो तल्ला तीन तल्ला ढाल सकते हैं आराम से। नींव पे हम कम ध्यान देंगे बुनियाद पर, और सिर्फ दर दीवार पर और ऊपर की मटेरियल पर ध्यान देंगे तो लोड नहीं ले पाएगा, वो गिर जाएगा नीचे तो बिल्डिंग। इसीलिए छत बनती है तो पिलर पर जमीन के अंदर बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि लोड ले सके। हमारा लोड क्या है जन्नत में जाने का? अकीदा, सही अकीदा होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कुरान में है कि अगर आप मुशरिकीन मक्का से पूछिए कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया तो कहते हैं मालूम है? मुशरिकीन मक्का का नाम भी अब्दुल्ला हुआ करता है, अब्दुल मुत्तलिब हुआ करता था। वो भी जानते थे कि इन सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन उनकी गलती क्या थी? वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते। खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला नाम था, लेकिन ईमान वाले नहीं। अल्लाह को मानते जरूर थे लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते थे, किसी को शरीक ठहराते थे। आज के जमाने में, आज के दौर में मुसलमानों की अक्सरियत इस राह पर है कि वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, और ये बदगुमानी, बदअकीदगी से हमें परहेज करना है। ये चीजें खत्म नहीं हो रही। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं बच्चों को, जो बच्चे न्यूली है, नया न्यूबॉर्न है, पैदा होते हैं, उनके पाँव में काला कार रहता है, हाथ धागा जिसको बोलते हैं, पाँव में भी है, हाथ में भी है, गर्दन के अंदर भी है। इसी तरीके से बच्चे को नजर बद से बचाने के लिए काला टिक्का भी लगा देते हैं, चाहे यहाँ लगा दे, चाहे यहाँ लगा दे, चाहे गाल में लगा दे ताकि नजर ना लगे। इस तरह की चीजें क्या है? हम कहाँ से चीजें लाए? क्या नबी की तालीम हमारे लिए काफी नहीं है? क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए थे, आपने उन चीजों को छुपा दिया? इसी तरीके से ये काला धागा जो है वो क्या नजर बद से हमारे राह की हिफाजत करेगा? अगर ऐसा है तो ये काला धागा फलस्तीन के बच्चों को बांध दिया जाए, बच जाए मुसीबत से। नहीं हो सकता। जो बच्चे मरने वाले हैं या मर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उनकी मदद करे। ये काला धागा तो हम ही लोगों लेकर पहुंच जाना चाहिए। इधर पहले तुम बांध दो ताकि तुम मुसीबत से बचे रहो। ये चीजें क्या है? ये चीजें शिर्क है कि हम उस काले धागे पर भरोसा किए हुए हैं कि ये बचाएगा, ये बचाएगा। वो नहीं बचा सकता। जो तदाबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है वो तदाबीर हमें अपनाना है। कि आपने नजर बद के लिए कौन सी दुआएं पढ़ी हैं? आपके भी बच्चे थे, 4 बेटियां थी आपकी, चारों बड़ी हुई, जवान हुई, चारों की शादियां हुई, तो आपने कैसे पाला पोसा अपने बच्चों को, है ना? आपके जमाने में सहाबा इकराम के बच्चे हुआ करते थे, आपके नवासे थे हसन हुसैन, वो भी छोटे बच्चे थे, उनको क्या पहनाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक छोटी सी मिसाल है कि देखिए हम माशरे के अंदर शिर्क जैसी लानत पर कितना ज्यादा हम डूबे जा रहे हैं, और हम इस तरह की चीजों पर जिसकी कोई हकीकत नहीं है, हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं।
है ना, उसके बावजूद भी बच्चों को परेशानी हो रही है। जैसे एक बच्चा खुद हमारे पास है, उसके वालिद साहब लेकर आए, उसकी तबीयत सही होती है और पूरे ताबीज से भरा हुआ उसे करता है। तो हमने कहा अब क्यों परेशानी हो रही है, हमको यही समझ में नहीं आया कि आपको तो हमारे पास नहीं आना चाहिए, अब क्यों आपका बच्चा नहीं 4 बजे सोया नहीं है, बुखार छूट नहीं रहा। हमारा सवाल नहीं है, हमारा बात आप नहीं समझे आप हमारी बात। हम कह रहे हैं कि आप पूरा प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, तो अब क्या हो गया इसको। लेकिन यही इंसान जो है इसमें देखिए एक और चीज है, इसको समझना होगा। एक चीज जो गलत है ना, जैसे जो मैंने मिसाल दी काले धागे की, कि इसको बांधने से बला टलती है, एक चीज ये गलत है क्योंकि ये अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, इस वजह से गलत है। इससे बड़ा गुनाह क्या है कि लोग डरते हैं कि अगर हम काट के फेंक देंगे तो आप बता दें अल्लाह ना ई काम मत करें। ये बहुत खतरनाक चीज है। एक चीज है कि भाई हमने मना कर दिया, आपने समझा दिया कि मत करो। एक चीज नहीं, अगर नहीं किए तो, अगर कर दिए उसको फेंक दिए तो कहाँ फेंके हम, कहाँ फेंके हम, जमीन में गाड़ दे, दरिया में फेंक दे। इस तरह की चीजें हैं। डर है, मतलब एक खौफ लगा हुआ है कि नहीं वो लोग बोलने का काम ऐसा मत करो भाई, आफत आ जाएगी। अगर उसको काट कर फेंकने से आफत आएगी तो उस आफत को गला में कहा लटका कर रखेंगे, बात समझा रही ना। तो डर भी है कि अगर उसको छोड़ देंगे हम तो क्या होगा, वो चीजें हमें नुकसान पहुंचा देगी। ये भी एक अजीब और गरीब तरह के मामला हैं। और अल्लाह ने इन चीजों के बारे में जो बयान किया कि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ माफ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह पसंद नहीं करता। ईसाइयत के बारे में अल्लाह ने क्यों कहा, अल्लाह को तकलीफ हुई कि इब्ने आदम ने मुझे गाली दी। हदीस में अल्लाह की तरफ से मुस्लिम की रिवायत है कि इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, हालांकि उसे मुझे गाली देना नहीं चाहिए था, उसने मेरे लिए क्या है शरीक ठहराया। ईसा अलैहिस्सलाम को नऊजुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कह दिया, तो अल्लाह ने उसको कहा कि मुझे गाली दी, जबकि लम यलिद व लम यूलद सूरह इखलास में ना कुल अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह का कोई बेटा है ना अल्लाह किसी का बेटा है। बस समझ रहे हैं। और इन चीजों में सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है कि सबसे पहले हमारा अकीदा दुरुस्त हो। हम अल्लाह के बारे में क्या सोचते हैं, हम रसूल की जिंदगी पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी परेशानियां अल्लाह के रसूल को आई, है ना। आप गारे गिरा के अंदर करीब 3 साल तक, गारे सौर के अंदर 3 साल तक आप लोग घूमे थे, जब मक्का वालों ने आपका बाइकाट किया 3 साल तक सारे सहाबा उसके अंदर रहे, खाना पीना सब बंद, कोई किसी से लेन देन नहीं करेगा। कैसे 3 साल उसी एक गार के अंदर रहे, क्या खाते होंगे क्या पीते होंगे, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई। आपने कौन सा तरीका अपनाया परेशानियों में, परेशानियों से निजात पाने के लिए जो तरीका हमारे नबी ने अपनाया वही तरीका हमें अपनाना है। और अल्लाह पे तवक्कुल के बारे में कुरान ने कहा ना, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। कुरान कहता है जो अल्लाह इतना बड़ा आसमान बना दिया, इतनी बड़ी जमीन बना दिया, बगैर खंबे के आसमान है, बड़े बड़े समंदर हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में रास्ता अल्लाह ने पैदा कर दिया, वो आगे जाए तो समंदर है, पीछे जाए तो फिरौन की लश्कर है, इधर भी मौत है उधर भी मौत है। अल्लाह ने समंदर को फाड़ दिया। इतने बड़े बड़े कारनामे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दुनिया के अंदर है, वो हमारा छोटा सा प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है। और इसी चीजों को हम नहीं समझते हैं और मुशरिकाना फेल कर जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है कोई मुसलमान इंतकाल करता है और इस सुनने में आता है कि वो मुशरिक था, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता था। हम कितना भी दुआ उसके लिए कर दे उसको नहीं लग सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा आप इन लोगों की इबादत क्यों करते हैं, वला ला युस्मउ वला युबसिरू वला युगनी अनका शैआ, जो ना आपकी बातों को सुन सकते हैं, ना आपको देख सकते हैं, ना आपको बेनियाज कर सकते हैं, आप क्यों इन लोगों की इबादत करते हैं। तो उन्होंने कहा उनके बाप ने कि तुम बाज आ जाओ, तुम ला इल्लम तंतही, अगर तुम बाज नहीं आओगे हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से, ला अर्जुमन्नका, तो मैं तुमको पत्थरों से मारूंगा, मैं तुमको पत्थरों से मारूंगा, चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको माफ कर दे। तो अल्लाह नाराज हो गया इब्राहिम सलाम के लिए, तो आप किसी मुशरिक के लिए मग़फ़िरत नहीं कर सकते। एक नबी को उसके बाप के ताल्लुक से रोक दिया है। तो हमारे जो भाई इंतकाल कर जा रहे हैं शिर्क की हालत में, सोचे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बड़ा अफसोस होता है। और हमेशा हिदायत की दुआ करनी चाहिए अपने पूरे मुआशरे वालों के लिए कि अल्लाह मौत दे तो कलमा तौहीद पर दे, कि हमारा अकीदा ये हो कि अल्लाह एक ही उसके अलावा। सिर्फ ये कहना नहीं होगा, उसको अमली जामा पहनाना होगा। ये छोटी सी आयत लेकिन इसकी तफसीर बहुत बड़ी है कि हम शिर्क के अक़साम को समझें कि कौन कौन सी चीज़ें शिर्क में हो सकती है। जैसे क्या होता है, कभी धूप हो और बारिश है, लगता है राजा रानी की शादी हो रही है,
अजीब तरह का अकीदा है। दूध गिर गया हाथ से, पाँव से लग के, लगता कोई मेहमान आने वाला है। ये कहाँ पे लिखा है? ये चीजें हम अपने पाल के रखे हुए हैं, हम ये अकीदा बना के रखे हुए। क्या बात है, इतना दूध गिर रहा है, क्या बात है पानी गिर रहा है, कोई यानी आने वाला है, कोई बदमाशी ना आता होगा बर्बाद करके आ रहा है, कोई अच्छा तो नहीं आने वाला होगा। अब कोई आ भी गया तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, देखिए बोले ना देखिए गिरा आ गया, मामू आ गए तुम्हारे, वैसे वैसे आ गया। तो शैतान तो आजमाएगा, शैतान तो आजमाइश में डालेगा। तो ये जरूरी है कि हम अपने अकीदे की इस्लाह करें सबसे पहले, कि हमारा अकीदा हमारे रब के ताल्लुक से क्या है। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, और नबी ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनी जिंदगी में कह दिया कि ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, तुम मेरे साथ मेरी तारीफ उतना बढ़ा चढ़ाकर मत करना जैसा इब्न मरियम के साथ किया गया, नसरानियों ने किया, तो उनको अल्लाह के बराबर कर दिया। और तस्वीर में क्या है, नौज बिल्लाह, हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, है ना, अल्लाह के बेटे मानते हैं उनको। तो अल्लाह का तो कोई बेटा ही नहीं है, अल्लाह ने खुद कह दिया। तब अगर अल्लाह का बेटा माने नौज बिल्लाह तो क्या होगा, शिर्क ना होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश मत करना। नसरानियों ने यही काम किया। और आप शेर सुनेंगे, जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, तो जमीन पे उतर आया मुस्तफा बनकर। आप सोचिए, सोचिए माना निकाले कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि जो अर्श पर खुदा था वो मुस्तफा बन के चला है। एक तो मैंने रील में देखा, मौलाना बोल रहे थे कि गौसे पाक के बारे में, कि अल्लाह ताला दूसरे आसमान से गिर गया तो गौसे पाक पकड़ लिया उसको, नौज बिल्लाह मिन जालिक। सोचिए सोचिए, तकरीर चली मौलाना की, लोग उससे सुभान अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ही गिर गया दूसरे मंजिले से, दूसरे आसमान से, तो गौसे पाक पकड़ लिया उसको। अस्तगफिरुल्लाह। सोचिए ये अकीदा लेकर हम कब्र के अंदर जाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा। वमन युशरिक बिल्लाह, और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा, फकद जल्ल जलालन बईदा, इतनी दूर अल्लाह से गुमराह कर देगा। दूर मतलब समझ रहे हैं, अल्लाह उसकी जिंदगी में इतनी गुमराही दे देगा, इतनी गुमराही दे देगा कि वो रिकवर नहीं कर पाएगा, बैक नहीं हो पाएगा, यहाँ तक उसकी मौत हो जाएगी। जब तक उसको रियलाइज होगा कि नहीं हम मुश्रिक कर, तो मर जाएगा, आखिरी सांस चलेगी, खत्म, अल्लाह ने उसको मौका ही नहीं दिया। इसीलिए हम अपने और अपने बच्चों के, खास कर जो नस्लें हमारी वो नहीं जानती, वो तो मासूम, उनको जैसा हम सिखाएंगे वैसा सीखेंगे, जो बतलाएंगे वही वो जानेंगे। तो हम अपने नस्लों की सबसे पहले तरबियत ही करें। तरबियत औलाद में ये पहला चैप्टर याद रखिए कि हमारे बच्चे मुशरिक ना हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का दिन करीब आ गया, सारे बच्चों को आपने खड़ा किया, 12 बच्चे थे अपने पास, उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। उनसे यही जुमला था, मर्दुल मौत में थे, उनको एहसास हुआ कि मैं बच नहीं पाऊंगा। अब अल्लाह ताला अपने पास बुला लेगा। तो बच्चों को नसीहत वसीयत करने के लिए, है ना, जब आदमी कोई बूढ़ा हो जाता है, अचानक उसको लगने लगता है कि अब मैं रिकवर नहीं पाऊंगा, तो बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो अब मेरी उम्र भी हो गई है, अब मैं जवान नहीं रहूँगा, बूढ़ा होऊंगा, तो बूढ़ा ही होगा, बूढ़ा के बाद सीधा मौत और कब्र है। तुम ठीक से रहना, एक दूसरे का ख्याल करना। याकूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों से कहा, माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाप तुम किसकी इबादत करोगे। ये पहला जुमला था। बताए कैसे बाप थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो इतना प्रॉपर्टी है, ठीक ठाक से बांट लेना, झगड़ा मत करना, छोड़ो, एक दो इंच इधर हो जाए तो दिक्कत नहीं, ऐसा बात नहीं किया। उनको फिक्र थी कि जो नस्ल मैं छोड़ के दुनिया से जा रहा हूँ, नस्ल हमारी कम से कम अल्लाह वाली हो। हम तो चले गए, लेकिन क़यामत तक हमारी नस्ल अल्लाह वाली हो। इसलिए हम अपनी दुआ में ये भी दुआ करें कि अल्लाह हम भी किसी की नस्ल से आए और हमारी भी नस्ल चलेगी, दुनिया के अंदर चलेगी। अल्लाह हमको आज निकल जाना है जब तू बुला ले, लेकिन अल्लाह इतना जरूर एहसान करना कि क़यामत तक हमारी नस्ल तेरी पुकार में तेरे नाम में। इतनी बेहतरीन दुआ है। जब मैदान महशर में जमा होंगे तो हमें बताया जाएगा, देखो तुम्हारी नस्ल का याद नहीं था, तुम चले गए, तुम्हारे 700 साल बाद भी ये एक अल्लाह की इबादत कर सकते। बड़ी खुशी होगी क़यामत के दिन, प्राउड महसूस होगा कि हमारी नस्ल अल्लाह को एक मानती है। आज इस पर कोई फोकस नहीं है। औलाद की तरबियत पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि एक अल्लाह की इबादत, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि माता अबुना मिन बादी। लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि या बुनिया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है ना। सब अंबिया के बारे में पढ़े ना कुरान के अंदर, तो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। उसके बाद आयत नंबर 117 117, उसमें भी वही बात बयान हुआ। अल्लाह ने कहा यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा, वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते मगर लड़कियों को, औरतों को। अभी बड़ा अजीब मसला है। औरतों से मुराद ये है कि जो उनके बुत थे, बहुत से बुत उनके मुअन्नस थे, जैसे नात, मना, नाइला नाम नहीं देखना चाहिए, नाइला ये बुतों के नाम मुशरिकों के।
आजकल मुसलमान लड़कियों के नाम सुनने में आता है नायला, तो नायला भूतों के नाम थे। ये सब नाम जो है ये मुअन्नस नाम है। और मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियां मानते थे, फरिश्तों को लेडीज मानते थे, तो फरिश्ते जेंट्स नहीं है, मुअन्नस है। यहाँ अल्लाह ने कहा वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते मगर मुअन्नस को, यानी लड़कियों को, यानी अल्लाह के साथ किसी को भी पुकार दे, लड़का को पुकार दे अल्लाह के साथ, लड़कियों को पुकार दे, शजर को पुकार दे या हजर को पुकार दे, सब तो शरीक ठहराए अल्लाह के साथ। शिरक करते थे, कहते नहीं हम किसी को नहीं पुकारते, अल्लाह बस औरतों को पुकारते, मतलब जो उनके भूतों के नाम थे लात मनात और नाइला। व इन यदऊना इल्ला शैतान मुरीदा, और वो नहीं पुकारते हैं मगर ये कि मरदूद शैतान को पुकारते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए शैतान यहाँ इसलिए कहा था ने कि अल्लाह के अलावा अगर हम किसी की भी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा, चाहे किसी का बुत बनाकर या किसी जिंदा को पूजे या किसी मुर्दा को पूजे, अल्लाह के अलावा किसी को पूजना शैतान का रास्ता है। इसलिए शैतान के बारे में कहा अल्लाह को छोड़कर जहां किसी को हम पूजना शुरू किए या किसी को शरीक ठहराए, रास्ता किसका है? शैतान का, रहमान का नहीं है। इसलिए कुरान ने कहा इन्ना शैतान लिर्रहमानी असिया, शैतान जो है अल्लाह ताला का रहमान का बड़ा ही नाफरमान है, बड़ा नाफरमान है। तो इसलिए अल्लाह ने शैतान का लफ्ज़ जिक्र किया कि हम अल्लाह को छोड़कर चाहे लेडीज को पुकारे, औरतों को पुकारे, जेंट्स को पुकारे, किसी को पुकारे, पत्थर को पुकारे, ये सब शैतानी रास्ते हैं। और शैतान का क्या है? मरदूद, जिसको अल्लाह ने रद्द कर दिया है, उसका लानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और पनाह मांगते हैं मरदूद शैतान से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया लानहुल्लाह, अल्लाह ताला ने उन पर लानत की। किन पर? शैतान पर और शैतान के रास्तों पर अल्लाह की लानत है। वकाला, और शैतान ने कहा लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूजा, शैतान ने कहा कि अल्लाह मैं मुकर्रर शुदा तेरे बंदों का जो मुकर्रर शुदा हिस्सा है वो लेकर आऊंगा। मतलब मफरूजा कहते हैं फर्ज किया हुआ, फराइज उसी से है जिसको विरासत में हिस्सा मिलता है। शैतान कह रहा है कि अल्लाह मैं जरूर लूंगा, लअत्तखिज़न्ना, पकड़ूंगा तेरे बंदों में से मुकर्रर शुदा जो हिस्सा है, यानी शैतान ने एक टारगेट लिया है कि इतने % मुसलमान को जहन्नम में डालना है। हर शैतान के चेलों को टारगेट मिला है कि तुमको 5 मुसलमान को बहकाना है, तुमको 10 को, तुमको 15 को, तुमको 20 को, टारगेट लेके घूम रहा पूरी दुनिया के अंदर, वो अपना टारगेट लेके चल रहा है। कुरान ने कहा यहाँ पे, कह रहा है कि अल्लाह तेरे बंदों में से मुकर्रर शुदा जो हिस्सा में लेकर रखूंगा। हिस्सा मतलब उसको जहन्नम में एक हिस्सा दिया गया कि इतना हिस्सा तुमको मुसलमानों से भरना है। अल्लाह से कह रहा है मैं लेकर रहूंगा। वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, उनको गुमराह करके और उनको झूठी ख्वाहिशात देकर मैं कैसे उसको जहन्नम में डालूंगा, कैसे वो हिस्सा हासिल करूंगा, तो उसको गुमराह करूंगा। दलालत से अज़िल्लन्नहुम है कि उनको मैं गुमराह कर दूंगा। और ये गुमराही ना है मेरे भाई, देखिए हम कितना गौर करें कि पक्का कुरान और हदीस पर कहाँ हम चल रहे हैं। हम लोगों ने अपने दीन में अपनी मर्जी को ला दिया है। सहाबा इकराम दीन के अंदर मर्जी को नहीं, अल्लाह के रसूल के हुक्म को लाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। आज हमने दीन कितना आसान बना दिया है, हमारा हर काम हम हिंदुस्तान में रहते इतना आसान, हम ही लोग बहाना बना देते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हो हिंदुस्तान है, वहाँ तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये चीज़ अल्लाह के सामने बोल पाएंगे? क़यामत के दिन एक तरफ जन्नत होगा, एक तरफ जहन्नम होगा। जहन्नम देख के तो होश उड़ जाएगा, या इसमें पसीने जरूर भूल जाएंगे। अब वो कहेंगे क्या हिंदुस्तान में पैदा हुए थे तो इस तरह का मसला था, नहीं चलेगा। इससे भी खतरनाक माहौल मक्का के अंदर, खौलते तेल में सहाबा को कहते थे, पीतल को आग में तपाकर और सहाबा इकराम को डाल देते थे, पलक झपकते ही हड्डियां जो है सुरमा बन जाती थी। इससे खतरनाक माहौल था कि अगर तुमने कहा जहां कहा अल्लाह बस काट दो। अभी है ऐसा माहौल है हिंदुस्तान में कि अल्लाह का नाम लेंगे तो हमको जान से मार दिया जाएगा, कुरान पढ़ेंगे तो हमको जान से मार दिया। बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम क्या है अपने लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं। और शैतान ऐसे लोगों को टारगेट करता है कि ये एक्सक्यूज अच्छा करता है, इसी को एक्सक्यूज में लेना है और इसको जहन्नम में डालेगा। हम समझ लीजिए बात को, अंदाजा नहीं है हमें कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी, यानी एक ऐसी जिंदगी अगर दिया है जिसके बारे में कल क्या होगा हमको नहीं पता। आज जो हमारे दरमियान कल रहेंगे कि नहीं गारंटी नहीं।
اور ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ کا آدمی چلا جائے اٹھنے بیٹھنے والا ہے، پھر بھی اس زندگی پر ہم پورا بھروسہ کیوں اللہ پر کم کیے؟ تمہیں بھی زندگی ہے، ابھی بہت زندگی ہے، وہ تو 30-40 کی ہوئے 50-60-70 باقی ہے میرے بھائی۔ یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے، یہ وہ خواب ہے جو ہم جاگ کر دیکھ رہے ہیں۔ خواب لوگ سو کر دیکھتے ہیں، ہم جاگے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک حصہ ہے تیرے بندوں کا جو مجھے ملا ہے مقرر شدہ، اس کو میں لے کر رہوں گا، اس کو مجھے حاصل کرنا ہے۔ کیسے لوں گا؟ وَلِأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو گمراہ کر کے ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ گمراہی بہت ساری چیزیں ہے گمراہی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گمراہ ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو گمراہ نہیں ہے۔ ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے، ایسی تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ کیا نماز پڑھنے والا جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ گمراہی نہیں ہے۔ کیا نماز پڑھنے والا ایک دوسرے کا حق نہیں مار رہا ہے؟ یعنی ہمارے معاشرے میں نماز کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فرشتہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں، فجر میں آگے رہتے تھے پہلی صف میں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کی نمازوں کو دیکھ کر حسد کریں گے کہ اتنی اچھی ہم نہیں پڑھ پائے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم رشک کرو گے، حسد کرو گے۔ اتنی پابندی، اتنی زبردست خشوع اور خضوع اور اتنی زیادہ لگاؤ تو ہم لوگ اندر نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے تو گنہگار نہیں ہے، آپ سمجھا رہے ہیں؟ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارے گناہ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے کہ مسجد میں آ رہے تو اللہ ہے، مسجد کے باہر نکلے تو اللہ ہی نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے تو ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، شور نہیں کرنا ہے، چیزیں نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، اب باہر جا کے سب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ مسجد میں باہر نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے علم کے اعتبار سے، ہر جگہ اللہ ہے۔ اگر گناہ ہم مسجد اندر کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور باہر کریں گے تو اللہ نہیں دیکھے گا۔ لاجک سمجھنا ہوگا۔ ہم لوگ ایسے ایسے ہیلے بہانے میں پھنسے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر رکھے ہوئے۔ اب اس سے ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے میں کتنا ہم لوگ مضبوط عقیدہ رہتا ہے کہ اللہ کی دعا قبول ہوگی، تو مانگتے ہیں نا۔ جب دعا مانگتے ہیں تو پوری امید سے مانگتے ہیں کہ اللہ دے گا۔ تو گناہ بھی کرے تو پوری امید سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ میں وہ امید نہیں رہتی، نہیں اللہ معاف کر دے گا، چلو نیکی ہے کر لیں گے تو کچھ گناہ اللہ طرف نہیں ہوگا کرے گا۔ شیطان اپنا ٹارگیٹ پورا کرے گا، اسے گمراہ کرے گا۔ یہ سب گمراہی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور باطل جو ہے اس نے وعدے کر رکھے، خواہشات تمنائیں کو دکھا چکا۔ بات سب زبان کس کو کہتے ہیں؟ سب زبان دکھا دیے ہیں۔ ایک مسلمان غربت کے دہلیز پر ہے اور مسلسل محنت کر رہے ہیں، غریبی اس کی کم نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس کو آزما رہا ہے، اس قدر آزما رہا ہے کہ اس کی پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب ایک جگہ اس کی آزمائش دم توڑ جاتی ہے، اب چھوڑی سب راستے کو، چلو چوری کریں گے آرام سے 50-60 لاکھ مل جائے گا، ایک بار میں قرض میرا ختم ہو جائے گا، اور وہ راستے کو چھوڑ لیتا ہے۔ وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا، اللہ کا بھروسہ نہیں کرتا، وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے، وہ جلد بازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی اللہ آزما رہا ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کو ہی، انبیاء سے زیادہ کوئی نہیں آزمایا گیا، انبیاء سے زیادہ کوئی اس دنیا کے اندر نہیں آزمایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پورے بدن میں گھاؤ تھا ان کو، اور نبی تھے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ درس کو شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو گمراہ کر کے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو جھوٹی خواہشات دکھا کر وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ دیں۔ یہ جانوروں کے کان کاٹنے کا مطلب یہ کہ بحیرہ ایک جانور ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ مشرکین مکہ اس جانور کو کیا کرتے تھے؟ ایک جانور لیے اور اپنے بت کے لیے خاص کر دیں، جب خاص ہوتے تو اسے کان کو کاٹ دیا، جس سے پہچان ہوتی تھی کہ بتوں کی جانور ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، کوئی اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، بتوں کے لیے نظر نیاز کیا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ بھی عقیدہ تھا۔ جو ابھی مارکیٹ میں بہت سارا دیکھیے بڑا بڑا جانور چھوڑا ہوا رہتا ہے، ہاں دیکھیے یہ چیز اس طریقے سے۔ اسی طریقے تو بحیرہ اس طرح کے جانور کا نام، اس جانور کو کہا جاتا تھا جو جانوروں کے لیے خاص کیا جاتا، ان کے کان کاٹ دیتے تھے۔ آذان الانعام، جانوروں کے کانوں کو کاٹنے کا بھی حکم دوں گا، یہ کہہ رہا ہے شیطان، یعنی ان چیزوں میں بھی مسلمانوں کو میں شامل کر لوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے۔ آج وہی ہو رہا ہے، اللہ کی تخلیق کو، لڑکا اپنے لڑکے ہونے پر خوش نہیں ہے، لڑکی اپنی لڑکی ہونے پر خوش نہیں ہے، اور لباس اور پوشاک کو دیکھ لیجئے، لڑکوں کے لباس لڑکیاں پہن رہی، لڑکیوں کے لباس لڑکے پہن رہے، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہوا۔ بال رکھنے کا انداز دیکھیے، جو لڑکیوں کا ہے وہ لڑکوں کا ہو گیا ہے،
ये सब शैतान कह रहा है कि मैं हुक्म दूंगा। अगर बड़ा बाल रखना छोटा गुनाह होता तो ये अल्लाह क्यों बयान करता कि अल्लाह की तखलीक को बदलने का हुक्म दूंगा। वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह, और जो कोई भी अल्लाह के अलावा शैतान को अपना वली बनाए, मतलब दोस्त बनाए, वली मतलब मददगार भी होता है, दोस्त भी होता है, फक़द खसिरा खुसराना मुबीना, तो बहुत खुली गुमराही में चला गया, खुली गुमराही में चला गया। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ, आयत नंबर 119 तक। इसके ताल्लुक से जो दर्स में बयान हुआ, कोई भी सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम सर किसी को बार बार किसी काम के लिए बोलना, इससे क्या कैटेगरी आता है? सवाल ये कि किसी के कोई काम करने के लिए बार बार बोलना, क्या ये शिर्क है? अब देखना वो बात कौन सी है, रोटी का प्रमोशन हो गया, ये कोई ऐसा बात कर होता दीजिए है? मेरा काम बार नहीं, बार ये तो शिर्क में नहीं आएगी, ये आ जाएगा तकब्बुर की कैटेगरी में आएगा, है ना। जैसे कोई आदमी की तरक्की हो, अल्लाह तरक्की दे, सबको दे, हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, अल्लाह सबको तरक्की दे। सवाल ये कि पूछ नहीं ना रहा है, हम लोग को नजर क्यों लगता है? नजर लगने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सामने वालों को पूछा नहीं और हम बताने के लिए तुले हुए। अभी सामने एक मोबाइल है, अब लिए हुए आज ही लेकर आए, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब इसे जान बूझे करे, कोई पूछे, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर हम कवर में निकाल दिया, तो चमका है, फिर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो फिर झूठ के कॉल किए हुए कि हाँ 6 GB है, तो आज पूछे कुछ लिए क्या हमसा, ओ अब अभी लेकर आई, फिर कुछ भी नहीं किया। हमको क्या जरूरत है अपनी नेमत जबरदस्ती किसी को दिखाने के लिए? देखो हम क्या लिए हैं, सामने वाला माशाल्लाह बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो हमारे ताल्लुक से मुखलिस है कि नहीं है, अल्लाह से बरकत की दुआ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नेमत को अल्लाह को दिखाना है, आवाम से छुपाना है, समझ गए ना। प्रमोशन हो गया, ठीक है, आप अपनी खुशी के इम्तिहान में जब होता है तो 1-2 दिन तक लोग ज्यादा, जैसे कोई माध्यमिक पास हो गया तो 1 से 2 दिन तक बड़ा खुश होती है, खुद ही ठंडा हो जाता है, हो तो क्या कितना सेलिब्रेट करें। अब 1 साल तक उस बात को 1 महीने तक लेकर फिरते रहे पास हो पाए, ये सही नहीं। तो सब सवाल थोड़ा सा ये था कि किसी को कोई काम करने के लिए उसको जैसे बार-बार आपके request पास हम करना आ है। रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हमसे मेरा काम कर दीजिए प्लीज, आप भी करवा सकते हो इस तरीके में जुमला, अरे आप नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब बार-बार किसी को एक काम ये लोग- करने के लिए अब बोलना। देखिए सवाल इसमें बहुत सारी चीजें हैं जी। कि हमारे पास बार बार आ रहा है, उनको समझना होगा क्यों आ रहा है, क्या बात है। देखिए कोई अगर हमारे पास आ रहा है तो हमारी बहुत खुश नसीबी है, तो हमसे मदद चाहता है, हम तो मदद के तौर पे लेंगे, पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव सोचता है। कोई बार बार आ रहा है तो मतलब उसको हमारी जरूरत है ना। तो अब इसमें बहुत सारी बातें, शिर्क का भी पता नहीं लगा सकते, समझना होगा कि भाई क्या मसला है, तुम्हारा ये मसला है, आप ही कर सकते हैं। तो उसमें ये समझना होगा कि बताना होगा कि सारे काम होने ना होने अल्लाह के हाथों में, इंसान तो जरिया बनता है। अगर आपको करने का मन होगा तो हम उस काम को अपने हाथ में ले लेंगे, नहीं करने का मन होगा या नहीं हमारे कैपेसिटी से बाहर तो बोल देंगे भाई देखिए हमसे नहीं हो पाएगा, और उसके बावजूद भी वो आ रहा है तो बदमाशी है, लेकिन शिर्क में नहीं आएगी। एक मौजू से हट के है, सपोज मतलब मेरे पड़ोस में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको सख्त पैसे की ज़रूरत है, बकरीद का मतलब मौका है, तो ऐसा हो। हाँ जैसे सपोज अभी जैसे हमारे ठीक है, नाम लेना, हाँ तो जैसे बकरीद का मौका है, तो बकरीद में जैसे हम कुछ पैसा जो जानवर ले रहे हैं, जैसे मेरा टारगेट था 30,000-40,000 का जानवर, हम उसको कम करके 20,000 के जानवर में ही सेटिस्फाई है, और जो बाकी का 10,000 का अमाउंट है उसको सपोज हम जो बीमार हैं उनके अगर ऐसे मदद के लिए, और ऐसे पूरा ग्रुप अगर कोई कर रहा है तो ये सही रहे। देखिए सवाल ये है कि कोई आदमी हमारे पड़ोस में या ताल्लुकात में रिश्तेदार में जो भी है, लेकिन उसको बीमारी या कोई चीज कोई प्रॉब्लम है जो उसको फौरन उसको ठीक करना है। अब वो बहुत बेचारा लाचार है, मजबूर है, लेकिन उसका मसला ये कि फौरन एक्शन लेना है, देर नहीं कर सकते। अब हम कुर्बानी के लिए पैसा रखे हुए हैं तो हम कुर्बानी छोड़ नहीं रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। टारगेट था हमारा इतना का, लेकिन उसको तरफ कम कर रहे हैं, मतलब हमको एक पूरा जानवर कुर्बान करना था, लेकिन हम 2 हिस्सा लिए और बकिया पैसे से उसकी हम मदद करना चाह रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है, इसको मतलब सही है? देखिए एक बात याद रखिए, सबसे पहली बात कि सबसे पहला हक अल्लाह का है, बंदों के ऊपर सबसे पहला हक किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। तो अल्लाह के हक में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल हक अदा करेंगे तो मुकम्मल जन्नत मिलेगी। पहली चीज ये कुर्बानी, ये ईद बकरीद बार बार नहीं आते, ये वो मौका होता है कि जब अल्लाह ताला हमको साल भर जो दिया है हम अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करते हैं। दूसरा इसके अंदर एक चीज है कि क्या उसकी मदद करने के लिए उसी में मेरा पैसा बचा और कोई पैसा नहीं एक्स्ट्रा। ये तो एक के साथ हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता। एक कोई है जिसके पास उतना ही पैसा है, कुर्बानी करेगा तो मदद करेगा, सबके साथ नहीं हो सकता। ये मैं थोड़ा कोई कहे तो नहीं मानने लायक बात नहीं है। तो
अल्लाह का हक पहले हम अदा करें मुकम्मल तरीके से। अगर एक आदमी है उसके पास ये प्रॉब्लम है तो वो ऐसा कर सकता है, चलो कुर्बानी कर रहे हैं तो पैसा उसको दे दें, लेकिन जितने और लोग हैं वो अपना मुकम्मल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें और बदले में पैसा उनके पास है उसकी मदद करें। असल में इमाम साहब ये सवाल जो है ना, लिबरल तबका यही सवाल उठाता ही है। हमें सवाल यही होता है सारे प्रॉब्लम दुनिया में है, तुमको अपना कुर्बानी मेरा तो सवाल पूछ चुके मैं आपके बारे में बोल रहा हम हूं। इसीलिए ये बात बोले लिबरल तबका में सवाल है, इस बात हम इसलिए बोले हैं, जैसे मिसाल सवाल हम लोग से बहुत से लोग कहते हैं बयान से अचानक कि जानवर बात दे उसके दिए। बाद हमारे पास भी आता है कि क्या जरूरत है इतना महंगा जानवर लेने का। जैसे हज के बाद हमारे डिपार्टमेंट मेरे पास आया था, इमाम साहब देखिए बगल का पड़ोसी परेशान है, हज पे चला गया। अरे वो क्या गलत किया है? अगर पड़ोसी का हक है तो उससे पहले अल्लाह का हक है, पड़ोसी से पहले हमारा और आपका अल्लाह का हक है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हज की तौफीक दी, इतना पैसा दिया, पहले फुर्सत में हज करें, पहले फुर्सत में हज करें। लेकिन दोनों तो नेकी ही में शुमार होते हैं। अगर लेकिन दोनों है, लेकिन सवाल ये कि पहले हक किसका है? एक तरफ किसी का जान बच रहा है और एक तरफ हम हज पे जा रहे हैं, नहीं तो आपको कहाँ कहा जा रहा है कि मत बचाइए? हम कहेंगे कोई ही एक दो आदमी ऐसा होगा जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, अक्सर के साथ इंडिविजुअली नहीं। हम इसको ले सकते हैं। हाँ। कोई अगर किसी को इंडिविजुअली जिसके साथ ये मैटर है कि यार तो हम कुर्बानी करें तो उसकी जान बचाए, तो जैसे आपने अच्छा कहा कि हम 30,000 का नहीं करके 10,000 करेंगे, 15,000 करेंगे, और वो पैसा उसको दे देंगे, बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन क्या प्रॉब्लम ये चीज आपके साथ ही है, सबके साथ है? ये सबके साथ तो नहीं हो सकता, सबके साथ नहीं हो सकता। जिनके देखिए जिनके पास वुसअत है, यानी अल्लाह ताला को शादी दिया, पैसा ज्यादा है, कुर्बानी कर भी सकते हैं। और बहुत से ऐसे घराने जो कुर्बानी करने के बाद भी लाखों लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुर्बानी कर रहे हैं उसके बाद भूखे मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये जिनके साथ है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, और जिनके पास अल्लाह ने फराख्ती दिया है उनको चाहिए तो बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। अरे कुर्बानी अल्लाह का मामला, ये इंसानी हुकूकुल इबाद का मामला, दोनों फर्क है दोनों में, बात समझा रही ना? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसमें हम अल्लाह की इबादत तो कैसे लाए? अभी एक आदमी क्या है रास्ते पर गिरा हुआ है ना, चाहे वो एक्सीडेंट से गिरा हुआ है, जिस तरीके से हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम जरूर उसकी मदद करेंगे, बिल्कुल। उसको हॉस्पिटलाइज करने के बाद क्या हम नमाज छोड़ देंगे? नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है क्योंकि अल्लाह का हमने छोड़ा हुआ है। अल्लाह ने इतना रुखसत दिया है कि उसकी जान बचानी तो हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन ये नहीं कि हम नमाज छोड़िए तो कभी नहीं पढ़ना, उसको पढ़ना होगा। उसी तरीके से आपको कुर्बानी करना है, अल्लाह ने ताकत दी, करिए। अच्छा उसी से रिलेटेड याद है नहीं, हम शायद उसमें इसीलिए एक मैंने थोड़ा सा आयत याद आया बहुत से कि एक मैंने हम लोग कुरान में ही आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक गुजरा है, जो मैं जैसे बोले ना शायद, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी रोजा, मेरी कुर्बानी है ना, ये दुआ है। तो मतलब जो समझना से जिस तरह से हम लोग नमाज पढ़ जाए तो मेरा नमाज तो कोई अदा नहीं कर सकता, मेरा रोजा भी कोई अदा नहीं कर सकेगा, हम भी तो रखना। उसी तरह मेरा कुर्बानी भी कोई अदा नहीं कर सकता, अगर हमको अल्लाह ताकत दिया है तो हमको उसको करना होगा। यही चीज है ना, वही तो कुल नसलाती और उसी और मतलब वो एक्सेप्शनल केस में कर सकते हैं, जैसे इनका सवाल था एकदम जिनके साथ मसला है उनको कुर्बानी के लिए कोई पैसा नहीं, हाँ वही या दिन में दर्द है उनको, तो ठीक है उतना कम कर दे, कुर्बानी की इबादत तो कर रहे हैं। असल भाई ने सवाल किया ना इस्लाम के लिए, बाकी लोग यही सवाल करते हैं। हाँ, समझ रहे हैं। आप लोग कुर्बानी में कुर्बानी का इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इसको अच्छा अकीदा और ईमान में क्या फर्क? देखिए जब कोई आदमी इस्लाम में दाखिल होता है तो मुसलमान कहलाता है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, बुनियाद को हमने मान लिया, नमाज रोजा हज ज़कात करना तो है, मुसलमान है। मुसलमान के बाद अब ईमान के 6 अरकान आते हैं, मुसलमान तो हम बन गए है ना। 6 अरकान, एक सवाल पिछली बार गुजरा था कि मोमिन और मुसलमान में क्या फर्क है। अब यह है कि जो हम मुसलमान बने हैं तो मुसलमान हम इसलिए बने हैं कि हमारे दिल में हमारे रब की मोहब्बत है। कोई कैसे मुसलमान बनते? हम तो खैर पैदा हुए मुसलमान घराने में तो मोहब्बत देकर इस्लाम में है, लेकिन यह सवाल ये कि जो अल्लाह के नबी मक्का के अंदर आए तो आप तो पहले मुसलमान थे, नबी थे है ना। आपको देख कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक बने, मर्दों में सबसे पहले मुसलमान, औरतों में खदीजा बनी। तो सवाल ये है कि आपकी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा। आपकी दावत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इस दावत पर अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले मुसलमान हुए, इस दावत पर खदीजा पहले मुसलमान हुए। वो इसलिए मुसलमान नहीं कि मोहम्मद कह रहे नहीं,
मोहम्मद क्या कह रहे इसलिए मुसलमान बने। मोहम्मद ये कह रहे हैं कि सारे माबूदों की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। यही चीज है अकीदा, इसी को कहते हैं अकीदा। हम मुसलमान हो गए लेकिन अल्लाह के साथ कितनों को शरीक ठहराते हैं, तो ये क्या होगा, ईमान हमारा गड़बड़ है, मतलब खराबी है उसके अंदर। तो ये ईमान क्या हुआ कि जब इस्लाम के दायरे में आ गए तो मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए, उस पर जो अमल कर रहे हैं। अकीदा ये है कि अपने रब के ताल्लुक से हम क्या सोचते हैं, ये है अकीदा। इसको अकायद कहा जाता है। अकीदा कहते हैं गिरह को, उसका लोगों में कहते हैं गिरह बनना। तो गिरह को हम क्या समझते हैं, जो धागा होता है तो गिरह बांध दिए, गिट्ठा जिसको मानते चले गए, वही अकीदा कि अल्लाह के बारे में मजबूत गिट्ठा बांध के रखना है कि अल्लाह एक है, उसी वही इबादत के लायक, उसकी लौटी इबादत के लायक नहीं। तो ईमान क्या है, हम मुसलमान बन गए तो हम मोमिन हो गए, नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, मोमिन है। लेकिन वो मोमिन कब मोमिन कहलाएगा, जब अल्लाह के बारे में एक मानेंगे अल्लाह, इसको अकीदा बोलते हैं। इसे मैंने वो आयत पढ़ी ना कि आप मुझे के लिए मक्का से कहेंगे जन्नत में क्या पैदा किया, तो क्या कहेंगे, अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन अल्लाह के साथ कितनों को, बुतों को शरीक ठहराते हैं। बोला है कि बहुत सारे घर में देखते हैं हम, मतलब जो बोला धागा वगैरह बच्चा को बांधना है, टीका लगाता है, तो कोई ऐसा घर है, मतलब उन लोग पौधों में ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर क्या बांधे, मतलब ऐसे ही बांधे, देखा हाँ बोल देखा कि बांधे, या फिर मेरा सोचना नहीं है वैसे ही बांध देते हैं, खाली खाली लगा। तो इसका क्या है, ऐसा करना है। इसी में थोड़ा सा ऐड कर दें, काजल बहुत से लोग मेरे खूबसूरती के लिए भी लगाते हैं, सिर्फ वो नजर वाला इसे मतलब रिलेट नहीं करते, उसको खूबसूरती के लिए भी लगाते हैं। या आँख बड़ा हो जाता है, बूढ़े लोग कहते हैं कि आँख थोड़ा सा बच्चा को लगाते तो आँख खुलता है, तो इस सब से फिर अगर नियत नहीं है वैसा फिर काजल लगा सकते हैं। नहीं तो सब देखिए सवाल ये कि जो काला धागा जो बहुत से बच्चे बांधते हैं, बहुत से परिवार ऐसा भी जो जैसा भाई का सवाल था कि देखा देखी बांधते थे, इनको पता ही नहीं क्यों बांध रहे हैं, है ना, उनको पता ही नहीं कि क्या क्यों बांध रहे हैं। बस उन्होंने देखा फला बच्चा बना हुआ था तो हम भी बांध दिए। अगर नहीं बांधते हैं तो खाली खाली लग रहा है, इस तरह की बात कहते हैं, उसमें काजल वगैरह भी है, टिक्का वगैरह भी लगाना है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि कॉमन सेंस होना चाहिए जिस काम को हम कर रहे हैं। एक चीज ये कि बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई फैलती है तो ट्रांसफर होती रहती है। अच्छाई हमेशा करनी चाहिए, वो भी ट्रांसफर होती है, लेकिन बहुत कम लोग ही अच्छाई को कबूल कर पाते हैं। अक्सर लोग बुराई को कबूल करते हैं। एक आदमी ने जानबूझकर काले धागे को बांधा, उसको देखकर कई लोग करने लगे, लेकिन जो लोग करने लग रहे हैं उनको तो पता मुझे ना क्यों कर रहे भाई। मुसलमानों की बदनसीबी तो यही है, असल बदनसीबी, कि जिस काम को हम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। हम और आप यहाँ चलते चलते आगे क्यों चलेंगे, क्यों चलेंगे पता ही नहीं, जा ये कैसे हो, ये कैसे हो जाएगा, हम कैसे में चले गए, ये कौन टाल रहा हो, वहां चले गए एकदम, ये कौन सा बांध रहा होगा पता नहीं चला आपको। आपको मालूम होना चाहिए ना वो बच्चा क्यों बांध रहा है, हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम उसमें एक चीज है कि अल्लाह इल्म है, जैसे हमको पता ही नहीं अच्छा है तो बुरा है, फिर भी हम नेगेटिव ही क्या बुरा हो जाए, हम यहाँ पर नेगेटिव भी रहे नहीं बांधने की वजह क्या है, कुछ तो मालूमात होनी चाहिए। ये कह देना कि हमको मालूम ही नहीं, हम देखा नहीं है, तो सही नहीं है। बहुत से को पता है कि ऐसे हम सोच के नियत में वैसा नहीं पता, ऐसे ही ना नहीं उनको भी बताने नहीं मत हम तो बहुत से लोग ऐसे कि स्टाइल के लिए पहन के रखते हैं, यहाँ पे कांदा सादा नाल पीला। और जहाँ तक काजल का सवाल है, काजल के बच्चों की खूबसूरती के वो लगा सकते हैं, वो टीका जो लगाते हैं ना, चाहे यहाँ पे ये सही है। यहाँ भी लगते हैं। असल में देखिए हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ना, ये दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है दुआ के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमें हक बात कहने हक बात सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमा, हमें जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।